ओके सो बेटा हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ब्लड. ओके, ब्लड फिजियोलॉजी. सो what is actually a blood? So blood is a type of fluid. Okay, you can say it is a connective tissue. Okay, which is being derived from meso. Okay, ब्लड क्या होता है? एक तरह का एक फ्लूइड है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जो कहाँ से आता है? मीजोडर्म से आता है, ठीक है. द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, comma, blood forming tissues and any disorders related to the blood is hematology, where the heme is the blood and logos is the study. So अगर कोई आपको पूछता है कि हम ब्लड की जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, तो ब्लड की स्टडी हम जो करते हैं उस ब्रांच का नाम है हेमाटोलॉजी. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the properties of blood is the color of the blood is bright red in the arteries, whereas it is dark red in the veins. Okay, keep this difference always in your mind. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज ब्राइट रेड इन कलर. जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है दैट इज, या जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है दैट इज ब्राइट रेड इन कलर, और ये आर्टरीज में होता है. एंड द वन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डार्क रेड इन कलर, और ये किस में होता है? वेन्स में होता है. Okay, mass. So it is 8% of our total body mass. Okay, pH, if we talk about the pH of blood, it is slightly alkaline, that is 7.3 to 7.4. Basically it is 7.4. Okay, taste, it is salty in taste. Okay, temperature, its normal temperature is about 38 or 100.4 degree Fahrenheit. If we talk about viscosity, then it is 3 to 4 times more viscous than water. Okay, total volume of the blood in our body is 5 to 6 liters. ओके, हमारी बॉडी में टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है. ओके, द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ओके, ब्लड बनता किन किन चीजों से मिलके है? ओके, सो यू कैन सी हियर इट इज प्लाज्मा on the up, that is the pale yellowish fluid, then the red blood cell, then there is platelets and white blood cells. Okay, so blood, if we look at its composition, so the 55% of blood is made up of plasma, that is the proteinaceous part. Okay, whereas the 45% remaining part is made up of the cellular elements. And these cellular elements are red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs, and platelets, whereas their scientific names are erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Okay, clear up to this point? Yes, sir. Any question? No, sir. Okay. No, sir. So the first is plasma. So plasma is a pale yellow colored liquid component of blood. Okay, in this plasma, the cellular elements of bloods are always
सस्पेंडेड। ओके, प्लाज्मा एक पेल येलोइश कलर का लिक्विड है जिसके अंदर सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, एक सस्पेंशन के रूप में। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं प्लाज्मा के? मैंने पहले ही कहा था जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि प्लाज्मा इज द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ ब्लड। So plasma contain 91.5% of water, okay, whereas it also contain 7% of protein, okay. 91.5% of water and 7% of proteins, whereas 1.5% are solutes. Okay, when we talk about proteins, it contains three main proteins: albumins, globulins, and fibrinogens. Albumins and globulins, they are the specific proteins in our body, whereas the fibrinogen is having a specialized function for clotting the blood or coagulating the blood. ओके, जब कभी कोई इंजरी होती है तो खून का थक्का जम जाता है, उसको कौन बनाने में हेल्प करता है? फिब्रिनोजन। ओके, अदर सोल्यूट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। Then gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Then आती हैं nutrients, glucose, amino acid, fatty acid, and finally waste products, urea, uric acid, ammonia, and creatinine. So प्लाज्मा के अंदर ये सब चीजें मिलके इसको बनाती हैं। Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the functions of plasma. Okay, constituent wise function है, water का function है absorb करना, transport करना and release करना heat को। बॉडी में अगर हीट बढ़ रही है तो उसको absorb करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना और रिलीज कर देना। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। ओके, क्या होता है ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस? Sir, transfer of solvent from low concentration to high concentration यस, through a semi-permeable membrane. यस, तो ये क्या करता है कि इस बैलेंस को हमेशा बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। ग्लोबुलेंस का मेन फंक्शन होता है बॉडी में डिफेंस बना के रखना, डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट रखना। जैसे हम अब बात कर रहे हैं कि हम कोविड वैक्सीन ले रहे हैं, हमें बचपन में भी वैक्सीन्स लगती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। इन एंटीबॉडीज को हम साइंटिफिकली नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलेंस, ठीक है। 5 तरह के होते हैं, IgG, IgM, IgD, IgE, IG, ठीक है। तो इन सब जो ग्लोबुलेंस हैं इनका सबसे मेन स्पेसिफिक पार्ट क्या है? ग्लोबुलेंस का डिफेंस बना के रखना बॉडी में। उसके बाद आता है फिब्रिनोजन जो हेल्प करता है ब्लड की क्लोटिंग के अंदर। देन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स का मेन फंक्शन है बॉडी में पीएच मेंटेन रखना। ओके, ना ज्यादा बढ़े ना ही ज्यादा कम।
Okay, then comes the cellular components. So the first is a red blood cell. Okay, RBCs की शेप कैसी होती है? They are the biconcave non-nucleated disc cells. ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूं तो मैं कह सकता हूं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बायकॉन्केव, आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से ये किस शेप में है? कॉन्केव शेप में है। डिस्क की शेप में होता है। सीडीज देखते हो ना, पहले सीडीज यूज करते थे तो वो सीडी की शेप में होती है, डिस्क की शेप में Yes. कॉन्केव होती हैं और सेंटर में या सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साइज रेंज करता है 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर में एंड इनकी थिकनेस होती है 2.5 माइक्रोमीटर। कलर जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, जो हीम हमने पढ़ा है, ठीक है, आयरन, आयरन के कंटेंट की वजह से इसका कलर रेड होता है। ठीक है, काउंट क्या होता है इसका? मेल्स के अंदर जो एडल्ट मेल होता है उसमें इसकी नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है, जिसको हम नॉर्मल वैल्यू कह देते हैं, दैट इज 5.4 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर कह सकते हैं, या पर माइक्रोलीटर कह सकते हैं। एडल्ट फीमेल्स में 4.8 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर। और एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। हर 120 दिनों के बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है और इसकी जगह पे नए आरबीसीज फॉर्म हो जाते हैं। ओके, क्लियर्ड? Yes, sir. एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अभी हमने पढ़ा कि 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाता है। अगर आरबीसी खत्म हो रहा है तो नया भी तो चाहिए हमें, तो उसकी प्रोडक्शन को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। तो एडल्ट्स में एरिथ्रोपोइसिस कौन करती हैं? रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। ओके, जिसमें क्या क्या आता है? हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स। छोटे बच्चों में 5 साल की उम्र तक बोन मैरो, जो जितनी भी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो सब हेल्प करते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन में। जबकि फीटस में लिवर एंड स्प्लीन। ओके, जो फीटस होता है उसमें जो होती है ब्लड की प्रोडक्शन वो करता है हमारा लिवर एंड स्प्लीन। ओके, अगर आरबीसीज का टोटल नंबर इंक्रीज हो जाए नॉर्मल से तो उसको कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, और अगर ये कम हो जाए नॉर्मल नंबर से तो उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, या एरिथ्रोपिनिया। नाउ द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से लेके टिश्यूज तक पहुंचाना एंड टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस लंग्स तक पहुंचाना। ओके, ताकि ऑक्सीजन बॉडी को मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा सके। सो नॉर्मल ब्लड जो होता है उसमें 13 to 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, दैट मीन्स कि एक आरबीसी जो है उसमें 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, और हर एक एचबी में
4 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल। अब आप देख सकते हो इसकी शेप आरबीसी से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड। जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो अमीबा की तरह होता है, मगर अंदर इसके एक न्यूक्लिएटेड सेल है। साइज 12 से लेके 15 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। कलर की बात करें तो दे आर कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट। कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं है और किसी भी तरीके से शेप बना सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है ट्रांसलूसेंट? सर ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर ना होना। थोड़ा थोड़ा क्लियर ना होना। आप कह सकते हो कि ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि प्रॉपर वे से ट्रांसपेरेंट ना हो मगर फिर भी लाइट पास कर सकती है उसमें। ओके, धुंधलापन हो जिसमें थोड़ा सा। काउंट अगर कहें तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है दैट इज, यहाँ पे वैसे तो लिखा है 5000 टू 10,000, मगर हम जो लेके चलते हैं यहाँ पे वो है 4000 टू 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर और पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन इज 10 टू 13 डेज। अब मेन चीज है कि ल्यूकोपोइसिस जो प्रोडक्शन होती है डब्ल्यूबीसीस की, उसको टर्म किया जाता है ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट्स में ल्यूकोपोइसिस में हेल्प करता है लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड बोन मैरो, जबकि फीटस में लिवर एंड स्प्लीन। अगर इंक्रीज हो नंबर में तो उसको कहा जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, अगर डिक्रीज हो तो उसको कहा जाएगा ल्यूकोसाइटोपिनिया। ओके, और अगर पैथोलॉजिकली हम कहें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डब्ल्यूबीसीस तो उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। ओके, नाउ द मेन थिंग इज दैट WBC is not just a single cell. It has two main categories. One is the granular and the other is the agranular. ओके, टोटल आपको बता दूं 5 तरह के WBC सेल्स होते हैं, जिसमें से 3 ग्रैन्युलर होते हैं और 2 एग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्युलर्स में आते हैं वो सेल्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जबकि ए ग्रैन्युलर्स जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, तो पहली बात ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीस की। तो न्यूट्रोफिल इस तरीके का दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर दिखते हैं इसको, जिसमें 3 से लेके 4 या 5 लोब्स हो सकती हैं न्यूक्लियस की। ओके, अगर इसको हम स्टेन करना चाहें तो ये स्टेन होगा न्यूट्रल डाई के साथ। ओके, फंक्शन है बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना, उनको फेगोसाइट करके, एनगल्फ करके। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो से। इओसिनोफिल्स होते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ओके, शेप आप देख सकते हो, बीच में डंबल शेप होती है इसकी। स्टेन होता है एसिडिक डाई के साथ। ओके, और इसका मेन फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शंस के साथ टैकल करना। बेसोफिल जिसका के न्यूक्लियस
इनडिस्टिंक्ट होता है लोब्स के साथ और बेसिक डाई के साथ स्टेन होता है। इसका मेन फंक्शन है सेम उसी तरह से एलर्जिक रिएक्शंस के साथ रिएक्ट उसको चेक करना और चेकिंग बताना कैसे, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करके। इसके लिए ये करता क्या है, हिपैरिन को प्रोड्यूस करता है जहां हिस्टामिन। ए ग्रैन्युलर्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ओके, इनकी साइटोप्लाज्म भी बड़ी होती है और इसमें न्यूक्लियस भी ज्यादा होता है। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोड्यूस करना एंटीबॉडीज को। लोकेशन होती है प्रोडक्शन की जो वो है बोन मैरो, स्प्लीन या टॉन्सिल्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़े WBCs होते हैं जिनके अंदर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इनका मेन फंक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करना। ओके, और इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, बोन मैरो। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत छोटे मगर बायकॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ओके, बाय कॉन्वेक्स बाहर की तरफ उभरे हुए सर्कुलर मगर बिना न्यूक्लियर मटेरियल वाले सेल होते हैं। साइज होता है सिर्फ 2 से 4 माइक्रोमीटर। नॉर्मल काउंट होती है इनकी 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 5 से 9 दिन और मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्लोटिंग करना। अगर कहीं पे इंजरी हो गई है तो ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प। प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। ओके, दे आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स and those large cells are called megakaryocytes, जो कहां पे रहते हैं, बोन में। If there is any increase in platelets, that is termed as thrombocytosis, और अगर decrease होता है that will be termed as thrombocytopenia. Okay, now the thing is अगर आरबीसीज नॉर्मल से कम प्रोड्यूस होते हैं पैथोलॉजिकली तो उसको कहा जाता है एनीमिया, अगेन अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। एंड द सेम थिंग इज लाइक ल्यूकोसाइट्स, द ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। ओके, नाउ ब्लड क्लोटिंग एक बहुत ही मेन फंक्शन होती है ये चीज, ब्लड क्लोट होना, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो अपना लिक्विड टेक्सचर जो होता है दैट इज फ्लूइडिटी वो खत्म कर देता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो थोड़ी ही देर बाद हार्ड हो जाता है और थोड़े दिनों बाद शेड हो जाता है अपने सरफेस से, जब टिश्यूज वहां पे नया जो है पार्ट बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लोट। ओके, सो प्रोसेस कैसे होता है ब्लड क्लोटिंग का, कि ब्लड वेसल जब आपकी स्किन पे जब कहीं पे भी पंक्चर हो गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, तो सबसे पहला काम क्या कौन करेगा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो वहां पे एक प्लग बना देंगे, ठीक है, और वो प्लग क्या करेगा, सारे के सारे ब्लड को स्टॉप करना स्टार्ट कर देगा बाहर निकलने से। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होगी कि प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यूज जो होंगे कुछ एंजाइम्स को पास करेंगे, कुछ एक्टिवेटर्स को पास करेंगे बॉडी में, जो क्या करेंगे, कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फाइनली क्या होगा
इन क्लोटिंग फैक्टर्स के जुड़ने के बाद वहां पे एक ट्रैप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं क्लोट, और ये क्लोट क्या कर देगा, ब्लड के फ्लो को रोक देगा। ओके, नेक्स्ट इज एंटीकोएगुलेंट, एक ऐसी सब्सटेंस जो ब्लड क्लोटिंग को रोकती है। बॉडी में ब्लड कभी भी क्लोट नहीं होता है, उसका कारण है कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, एंड दैट नेचुरल एंटीकोएगुलेंट इज हेपरिन और हेपेरिन। ओके, अगर ब्लड बहुत जल्दी क्लोट हो जाए तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। ओके, और ये कहीं पे भी हो सकती है, इवन चाहे ब्लड वेसल डैमेज नहीं भी हुई है तो ये वहां पे भी क्लोटिंग कर देगा। और अगर ब्लड क्लोटिंग को होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमरेज। ठीक है, ब्लड हेमरेज। कभी सुना होगा कि जी ब्रेन हेमरेज हो गई है, सुना है कभी इस कंडीशन को? Yes, sir. तो उसमें होता क्या है कि ब्रेन में जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसमें सपोज करो कि ब्रेकेज हो गई तो वहां पे क्लोटिंग तो होएगी नहीं और ब्लड लगातार बहता जा रहा है, तो उस कंडीशन को कह दिया जाता है ब्रेन हेमरेज, क्योंकि क्लोटिंग नहीं हो पा रही है। ओके, so this is it for the blood. Okay, I will give another lecture. This is, you can say, the simple lecture for the blood. Okay, but we will discuss about its functions thoroughly, okay, in coming lectures.